Hello dear students, welcome back to your social studies class. Let us again restart our explanation of chapter 6, staying connected, and today we are going to start a new topic, that is means of communication. So in this topic we are going to learn about the different means of communication through which we communicate from one place to another or from one person to another. So in the modern world, we use highly developed means of communication. The different means of communication are as follows. So, this line states that हम इतने मॉडर्न वर्ल्ड, इतने ज़्यादा टेक्नोलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं एंड वी यूज़ हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आज के टाइम में हम इतना ज़्यादा हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसमें से ही कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दे हैव गिवन बिलो. So dear students, nowadays we can connect with people anywhere in the world within seconds. The development of these means of communications and the development of science and technology has made the modern day communication very effective and easy. The different means of communications that they have given are, first is postal services. See, letters and parcels can be sent through the postal services. The postman collect letters and parcels from the post offices and deliver them to our homes. Speed post and courier services are faster way of sending letters and parcels. So postal services, dear student, in that 70s and 80s में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था. क्योंकि तब और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे. तो as you know, if you are writing a letter, then what you need to do, जब फ़ोन्स नहीं होते थे और आपको जो भी स्टूडेंट्स अपने घर बात करना चाहते थे फ्रॉम द हॉस्टल, दे यूज़ टू राइट लेटर, या उनके पेरेंट्स भी लेटर लिखते थे, तो दे यूज़ टू राइट लेटर्स. और कुछ भी सामान भेजना होता था तो दे यूज़ टू सेंड विद पार्सल. सो दीज आर द पोस्टल सर्विसेज. नाउ टुडे वी डोंट यूज़ देम मच. आज के टाइम में हम पोस्टल सर्विसेज इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट अगेन आई विल टेल यू, जब हमें कोई कोरियर ऐसा कोई सामान भेजना होता है, लाइक वी आर सेंडिंग समथिंग फ्रॉम हेयर टू दिल्ली और फ्रॉम हेयर टू एनी प्लेस एल्स, तो हम पोस्टल सर्विसेज का यूज़ करते हैं. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फिल द फॉर्मेलिटीज़, लाइक वट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर हेयर, एड्रेस वगैरह सब लिखना होता है, एंड then the postman collected and deliver it to the home. Now speed post and courier services are faster way of sending letters and parcel. अब जो normal service होती है, like it will take some time, around 10 to 15 days, but nowadays we don't have such time to waste, so people opt for speed post and courier services, जो कि एक faster means of communication है, जिनके थ्रू आपका कोरियर या आपने जो भी पार्सल भेजा है वो विदिन 2 days जो है कहीं पे भी उसको पहुंचाया जाता है. एंड फॉर दैट दे टेक अ स्पेशल अमाउंट. उसके लिए जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल जो आप लेटर पार्सल देते हैं उससे ज़्यादा होते हैं. क्योंकि स्पीड पोस्ट का मतलब भी यही है that they will send it earlier, बहुत जल्दी, faster means of communication, यानी कि फास्ट तरीके से भेजेंगे, and for that you need to pay a particular price. Now the second one is telephone and mobile phones. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. You need to remember this date, 1876. It has come a long way since then, and the cordless phones and mobile phones of modern times are very useful and handy communication tools. Nowadays, mobile phones have inbuilt computers, camera and video camera as well. Such advanced phones are called smartphones. So talking about telephones and mobile phones, see, in 1876, Alexander Graham Bell had invented the telephone, and since after that there is a lot of improvement in the technology. और तब से जो उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया उसके बाद हर टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई और वो चीज़ डेवलप होती चली गई. लाइक जो अर्लियर टेलीफोन्स होते थे, दे वर क्वाइट ह्यूज, बिग,
उसकी जगह जो है देन फ़ोन्स बनाए गए, कॉर्डलेस फ़ोन्स बनाए गए एंड आज के टाइम में जो है हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं एंड दे आर नोन एज स्मार्ट फ़ोन्स। पहले क्या होता था, यू हैव टू कीप घर का फ़ोन है, लाइक घर में जो भी फ़ोन होते थे हैंडी फ़ोन या कॉर्डलेस फ़ोन, उनको आप बाहर नहीं ले जा सकते अपने साथ। ओके, दे वर वेरी मच हैंडी, आप आराम से, बट दे नीड टू कीप एट अ पर्टिकुलर प्लेस, आपको उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है और वहीं से ही आप बात कर सकते हो, जैसे कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स के साथ करते हैं। एनीबडी, कोई भी इंसान, एवरीवन इज़ गोइंग आउट, दे आर टेकिंग देयर फ़ोन, राइट। एंड आजकल जो फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में इतनी ज़्यादा सर्विसेज, हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक वी कैन गेम ऑन दैम, वी कैन यूज़ कंप्यूटर ऑन दैम, MS वर्ल्ड, एवरीथिंग, यूट्यूब, मतलब इतना ज़्यादा आपको एफिशिएंट चीज़ें मिलती हैं, इफ़ेक्टिव चीज़ें मिलती हैं दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आप अब हमें अपने साथ हर वक्त लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का वो नहीं है, क्योंकि आप जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपने फ़ोन पर कर सकते हैं, इसलिए उनको स्मार्टफोन्स कहा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, the use of computers and the World Wide Web or the internet has changed the way we communicate. Computers help us to run our businesses efficiently and perform calculations in seconds. Aeroplanes, cars, and ships use computers to monitor geographical position, fuel usage, and engine temperature. We also communicate with others through electronic mails or emails. Now, let us talk about the importance of computer. So you know, the use of computer and the World Wide Web, यानी कि WWW, or the internet, we call it internet, has changed the way we communicate. कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू जो हमारा एक वे है कम्युनिकेट करने का, जब से वो इन्वेंट हुआ, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। वाई? सिर्फ हम घर के काम के लिए या पढ़ाई के लिए, ऑफिस के काम के लिए कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते। यू सी, कंप्यूटर इज़ यूज़फुल इन एवरी फील्ड, ओके, इन एस्ट्रोनॉमिकल, इन जो भी लाइक फर्स्ट एनी रिसर्च, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एरोप्लेन्स, कार, शिप्स, दे इन ऑल दीज थिंग यूज़ कंप्यूटर्स टू मॉनिटर जियोग्राफिकल पोजीशन एंड फ्यूल यूजेज एंड इंजन टेम्परेचर, कि इंजन का कितना टेम्परेचर है, फ्यूल कितना यूज़ हुआ है, हाउ मच इट कैन टेक फर्दर, ओके, एंड व्हाट्स द जोग्राफिकल पोजीशन वेयर दे आर लैंडिंग और वेयर दे आर। तो ये सारी चीज़ें भी हमें विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर पता लगती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इफ़ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर मॉनिटरिंग, जैसे कि हमारे सबके पास स्मार्टफोन्स हैं एंड वी ऑलवेज डेली गेट अ नोटिफिकेशन, ओके, फ्रॉम वेदर फोरकास्टिंग, कि आज कितना टेम्परेचर रहेगा, कल कितना हो सकता है, आने वाले हफ्ते में कैसा हो सकता है। सिंस वी डू नॉट नो, इट इज़ अ नेचर और कभी भी चेंज हो सकता है, बट जैसे नेचर के इंडिकेशंस होते हैं, जो अभाव होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर और ये टेक्नोलॉजी विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर दे टेल अस कि आने वाले टाइम में कैसा टेम्परेचर रहेगा या मौसम कैसा हो सकता है। अब ये नेचर पे डिपेंड करता है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। 50% अगर वेदर में होता है लाइक इट विल बी रेनिंग, हो जाती है, एंड 50% में भी होता है नहीं हो, किसी और लोकेशन पे बारिश हो सकती है। तो it is very helpful in all things. We also communicate with others through electronic mails or emails, और हम कंप्यूटर के थ्रू दूसरों से ईमेल्स भेजकर बात भी करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन भी सेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी रिमाइंड यू, जब फ़ोन्स में इतना ज़्यादा मैसेजिंग और ये सोशल ऐप्स इतनी ज़्यादा इन्वेंट नहीं हुई थी, तब लोग अपनी ईमेल आईडी से कंप्यूटर के ऊपर ही एक दूसरे से चैट करते थे विद द हेल्प ऑफ ईमेल। बट आज के टाइम में ईमेल सिर्फ जो है ऑफिशियल वर्क करने के लिए या फिर ऑफिशियल कोई मैसेज डालने के लिए, लाइक किसी कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है, उसका आपको जो भी है कंप्लेंट डालनी है, कुछ भी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बट generally it is very useful that we can talk and we can send our information to other people. Now the last is mass media.
See, some means of communication which communicate news and information to many people at the same time are called mass media. अब मैं आपको बताती हूँ दैट मास मीडिया क्या है. मास मीडिया इट इज़ अ पब्लिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली. मीन्स मास मीडिया में हम उन चीज़ों को काउंट करते हैं विच आर रन इलेक्ट्रॉनिकली and through which we send message at a time to a large number of people. For example, newspaper, books, magazines, radio, television and internet. Now I will explain you how. See, न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन्स इसलिए मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि जब भी कोई बुक प्रिंट होती है, न्यूज़पेपर प्रिंट होता है या मैगजीन प्रिंट होती है तो वो एक नहीं होती. They are in the number of thousands, lakhs, okay, and it is sell in the country widely. पूरी कंट्री में ये सेल किया जाता है. अब जितने भी लोग उनको पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें उसमें लिखी होंगी तो इट विल गिव अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टू एवरीवन हु इज़ रीडिंग द बुक और हु इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड हु इज़ रीडिंग द मैगजीन्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सबके घर पर न्यूज़पेपर आता है तो ये एक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे घर पर आया और सेम न्यूज़पेपर सारे घर पे आता है, वेदर इट इज़ दैनिक जागरण और इट इज़ अमर उजाला और इट इज़ हिंदुस्तान टाइम्स. तो आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वही सेम इंफॉर्मेशन मुझे भी मिल रही है. वाई? बिकॉज वी आर रीडिंग द सेम इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज़. जैसे कि द बुक वी आर लर्निंग फ्रॉम, यही सोशल बुक मेरे पास है, यही सोशल बुक्स आप सबके पास है. तो इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बिकॉज जो मैं पढ़ रही हूँ वही आप पढ़ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ वही आप देख रहे हैं. लाइक द सेम इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन टू लॉट ऑफ पीपल, राइट. Second is radio. Radio stations broadcast news, entertainment and educational programs from all over the world. अब रेडियो पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें हैं. आजकल हम लोग इतना जो लाइक सिटीज़ में रहते हैं, मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, इतना ज़्यादा हमारे लिए ऑप्टफुल नहीं है रेडियो. बट पीपल हु आर लिविंग इन विलेज और टाउन्स दे आर हाईली अफेक्टेड विद रेडियो बिकॉज जहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहता है तो वहाँ पर लोग रेडियो सुनना काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर आपने देखा होगा रेडियो के ऊपर सॉन्ग्स भी आते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग भी होती है, क्रिकेट मैच की कमेंट्री भी होती है एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है. तो इट इज़ बीइंग गिवन और न्यूज़ भी आती है. तो ये रेडियो पे जो भी चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं वो जितने भी लोग सुनते हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. नाउ television, most popular means of mass communication. It enables us to watch live action such as news, sports and cultural events. So as you know, television is also a mass means of communication because it enables us to watch news, sports and cultural events. तो ये भी है, एक ही टाइम पे जब लाइक क्रिकेट मैच आ रहा है तो एक ही टाइम पे पूरी जगह आ रहा है, सारी जगह सारे घर पे आ रहा है तो यू आर वॉचिंग इट थ्रू टेलीविज़न. तो इट इज़ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन वेदर यू आर वॉचिंग न्यूज़, वेदर यू आर वॉचिंग any other thing, any cultural program, any daily soap, any movie or Animal Planet, anything, whatever you are watching, so वो सारे लोगों के लिए है and everyone is watching, so everyone is getting knowledge. अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टीवी को किस वे में यूज़ करते हैं. आप उसको वेस्ट भी कर सकते हैं लाइक बाय वॉचिंग डेली सोप्स, हाँ, बाय ये सब चीज़ें देखकर आप अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड ऑप्शन है कि यू कैन वॉच एनिमल प्लैनेट. आप अपना टाइम यूटिलाइज करिए बिकॉज यू विल कम टू नो various facts about animal and other oceans, rivers, etc. So television is also a mass means of communication. Now the last one is internet, and information can be easily and quickly accessed in various formats. Why? The internet. अब हम इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ईज़िली एक्सेस की जा सकती है और हम इसको वेरियस फॉर्मेट्स में इंटरनेट के थ्रू इधर उधर भेज सकते हैं. लाइक यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर सेंडिंग फॉर यूजिंग गूगल क्लासरूम एज वेल.
you are using internet for accessing videos on YouTube, and you are sending your queries everything through WhatsApp. तो आप देखिए आप अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइप, लाइक अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे आपको नीड है आप वैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू डू इट. Through what we can say, through the internet we get new information on lot of topics, and this is how it helps. There are also many useful sites on the internet such as NASA that help us in learning more than whatever given in our textbooks. तो ये भी है, आप काफ़ी सारी इंटरनेट के थ्रू आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं. अपनी इतनी सारी आजकल साइट्स अवेलेबल है जो आपको अलग अलग टॉपिक्स पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप उस वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. नॉट ओनली फॉर प्लेइंग गेम्स कि आपको गेम्स खेलना है, यू आर यूजिंग इंटरनेट, और यू नीड टू चैट विद योर फ्रेंड्स, सो यू नीड टू यूज़ इंटरनेट. यू कैन यूज़ इंटरनेट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, यू कैन यूज़ इंटरनेट टू मेक योर सेल्फ बेटर, टू नो योर सेल्फ better, to make your subject better. Okay, so here I have written a very short definition of mass communication: a public communication transmitted electronically. Thank you. Keep learning, dear students. Keep revising.